sixth attempt, third interview, and I did this with a full-time job. I think job is a lucky charm for you in your sixth attempt. So from engineering background to PSIR as an optional, how easy or difficult it was for you? Did everything and anything that I could do in my limited capacity, and So आपका क्या मानना है? How has been the difficulty levels of CSAT? Today in our toppers talk, we have another topper, Mr. Neil Sharma, with us, who is going to discuss about his success story. It's a long journey for him, but a successful journey at the end. Welcome, Neil. thank you, ma'am. Thank you. Tell us something about yourself. So, ma'am, I firstly I secured an All India rank of 316 in UPSC 2023 attempt. I hail from Thane district of Maharashtra. I did my BTech from IIT Kanpur in 2016. And post that, I have been preparing for civil services. So this was my sixth attempt, third interview, and I did this with a full-time job in this attempt. So I was working as a data scientist at a firm in Bangalore, and fortunately, this attempt came out to be. So full-time fruitful. working. So have you been working since your very first attempt, or off late you started working? मैम, so I started after my fourth attempt, after my fifth attempt, क्योंकि जब 5 attempt हो गए, so I was वो एक insecurity creeps in कि अब क्या करें, job चाहिए, कुछ एक financial security चाहिए. So I took up a job after my fifth attempt. Before that, I was preparing full time. Generally people leave the job and then they get selected. Right, ma'am. Now it's a reverse thing that you Right, have ma'am. joined the job and you Right, got selected. So Right, I ma'am. think job is a lucky charm for you in your sixth attempt. Ma'am, not the, in fact, I have a view here कि यार plan B sometimes, and especially after your third attempt and fourth attempt, वो एक insecurity आ जाती है, आपका confidence level एकदम, मतलब at least in my personal case and जो मेरे peer group थे, तो confidence level आपका इतना नीचे होता है. So job kind of helps you gain that, वो आपको एक breather दे देता है from your routine UPSC preparation. So I think, and the very existence of plan B is something which I think worked for me, because मेरी जो कंसिस्टेंसी थी और मेरी जो प्रिपरेशन थी वो सिक्स अटेम्प्ट में ज़्यादा फोकस थी, लिमिटेड थी लेकिन फोकस थी एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस अटेम्प्ट. सो आई थिंक या एज यू मेंशन्ड आई वुड डेफिनेटली कॉल इट अ लकी चार्म. So what I feel is, Neil, because if you are constantly, sometimes what happens is like every individual have a different way of dealing with the stress. So sometimes like 5 attempts, no success is coming and we are so stressful, and then our mind is not working. So when you get a breather, then again everything starts from the scratch, Right, and you are able to perform your best. Right, ma'am. That's true. Okay, Neil, you are an engineer from IIT Kanpur, yeah, material sciences. Yes, ma'am. And you have chosen PSIR as your optional. Right, ma'am. So from engineering background to PSIR as an optional, how easy or difficult it was for you? Ma'am, I would say eventually, I mean, for me it was difficult because I have never had this practice of writing answer like PSIR scholar would write, right? So it was a very new territory for me. But then जैसे सब करते हैं, मैंने भी वही भेड़चाल कह लो कि because PSIR was a very famous optional back then in 2016, there was a lot of overlap with your GS syllabus, and मेरे जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो अक्सर, मतलब वो पहली बात तो है नहीं यूपीएससी में, और बाकी जो मैथ्स फिजिक्स साइंस उससे वो टच छूट चुका था. तो जस्ट लाइक एनी अदर इंजीनियर आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग. तो मैंने सोचा कि PSIR इज समथिंग दैट वुड वर्क फॉर मी, एंड विथ प्रैक्टिस एंड विथ आई थिंक आई वाज एबल टू गेट माई सेल्फ टू दैट लेवल कि हाँ ठीक है, एक डिसेंट आंसर लिख सकते हैं यूपीएससी लेवल के. आपने कहा कि दो लाइक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए बहुत दिक्कत रही वो आंसर राइटिंग की, क्योंकि दैट इज समथिंग. सो दैट माइट हैव कॉस्टेड यू 2 मेंस. Yes, ma'am, I would say that. I would be wrong if I, or I would not be, truthful if I don't accept that. So yes, वो जो एक engineering वाली thinking होती है, उसके वजह से मे बी जो एक GS के आंसर्स लिखने की जो तरीके होते हैं उसमें मेरे को डिफिकल्टी आई थी. बट देन इट्स अ प्रोसेस. आई थिंक यूपीएससी के रैंडमनेस में एक वेरिएबल मैं ये कह सकता हूँ. सो हाउ यू इम्प्रोवाइज्ड अपॉन दिस एस्पेक्ट? So my way of improving this was so I had friends who from my college and from other engineering background जिन्होंने clear किया था. So मैं उनके answers पढ़ता था और उनके answers को एक तरीके से I used to blatantly
try to mimic them and it worked for me क्योंकि मुझे पता चल गया कि हाँ क्या चीज़ लिख रहे हैं क्या चीज़ and बहुत माइनर चेंजेस थे मतलब फैक्चुअल नॉलेज कुछ कुछ जगह पे रट्टा मारना भी काम आ जाता है वो मैंने इवेंचुअली ये सीखा और Ratta in the sense datas and all. Data because you points need हो to substantiate your Right, points, so there right, you right, need data. It's right. not about ratta, but it's about like you know the data. Exactly मतलब एनालिटिकल तो होता ही है बट हाउ डू यू सब्सटैंशिएट हाउ डू यू एनरिच योर आंसर सो उसमें वो डेटा पॉइंट कोई अगर PSIR के आंसर लिख रहे हो स्कॉलर्स का नाम कोई किताब का नाम कोई लेटेस्ट फाइंडिंग्स हुई हो तो वो सो दैट वे ऑल दोज थिंग्स का एक छोटा सा वो एक मेमोरी बुक सॉर्ट ऑफ बनाया था मैंने एंड आई यूज्ड टू लाइक remember that so yeah did everything and anything that I could do in my limited capacity and okay so like आपका जो मेंस की प्रिपरेशन है स्पेशली GS की तो GS की प्रिपरेशन के लिए आपने जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डिड यू जॉइन टेस्ट सीरीज यू इम्प्रोवाइज्ड और जस्ट इट वाज जस्ट द पीयर ग्रुप लाइक यू सेड कुछ सीनियर्स थे मैंने उनसे किया तो मैम तो स्टार्टिंग में इनिशियली आई वाज राइटिंग ऑन सम पोर्टल तो काफ़ी सारे पोर्टल्स खुल चुके थे जिसमें आप आंसर लेकिन वो क्या रेगुलर नहीं हो पाते थे रेगुलर चेकिंग नहीं होती सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं बुकलेट ले आता था जो क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है और ब्लैंक बुकलेट आती है वो दुकानों में मिलती है यहाँ पे 20-25 रुपए की तो बुकलेट पे आई यूज्ड टू राइट द आंसर एंड देन मैं सेल्फ इवैल्यूएट करता था सो आई थॉट दैट आप हर आंसर को किसी से रिव्यू नहीं करा सकते हो पीयर के पास या दोस्त के पास लिमिटेड टाइम होता है और हर टेस्ट सीरीज भी जनरली आप टेस्ट एग्जाम से थोड़ा नज़दीक आते हो तब लगाते हो बट जो एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि मैं आप खुद इवैल्यूएट करो तो मॉडल आंसर देख लिया और मैंने टॉपर्स का आंसर काफ़ी सारे देखे थे वो वेबसाइट से जो फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं वहाँ से मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के आंसर डाउनलोड किया उन्हीं के आंसर कभी कभार मैं लिखता था फिर उन्हीं के आंसर चेक कर लेता था और कभी कभार जो मॉडल आंसर जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं उनसे लिखता था एंड देन टेस्ट सीरीज भी मैंने लगाई थी लाइक 2 months before my mains तो I joined like a rigorous test series जहाँ पे वो UPSC schedule में टेस्ट होता है तो that was my way of being consistent with answer writing. नील ये आइडिया कहाँ से आया कि UPSC करना है कॉलेज से आया कॉलेज से पहले से था आपके मन में कि मुझे UPSC के लिए जाना है मैम तो देखिए महाराष्ट्र एग्जैक्टली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इतना ज़्यादा UPSC का क्रेज नहीं मतलब हार्डली पीपल नो बट जब मैं कानपुर में गया सो मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा कल्चर है सो आई थिंक मैं देख रहा था तो JNU के बाद IIT कानपुर से सबसे ज़्यादा UPSC काफी सारे एस्पिरेंट होता है जो क्लियर करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसे हॉबी ग्रुप्स होते थे जिसमें ऐसे जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते वो आके उनमें इंटरेक्शन होता था देन देयर वाज वन UPSC के प्रिपरेशन के लिए एक इनफॉर्मल ग्रुप बना था सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट और कहीं ना कहीं वहीं से मुझे पता चला आई केम टू नो एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर वाज एन IPS ऑफिसर सो फिर आई गॉट टू नो अबाउट व्हाट एन IAS इज व्हाट एन IPS इज एंड वहाँ से वो एक इंटरेस्ट आ गया लगा कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करी एंड या सो आई वुड लाइक गिव ऑल द क्रेडिट टू माई कॉलेज एंड द कल्चर that my college has around UPSC preparation. Yeah, so best ecosystem exactly you have got in your IIT Kanpur. Exactly. So you started your preparation from college days only or it was only after the college you thought of starting the preparation? मैम तो इनिशियली तो मुझे पता था बट लाइक क्या होता है कि जॉब और इंटर्नशिप का एक ये होता है कि नहीं मतलब वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए थी सो आई वाज कैंपस प्लेस्ड एक कंपनी में हो गया था बट देन कंपनी में जब मैं गया एंड आई वाज लाइक सीइंग माय फ्यूचर एक प्राइवेट सेक्टर में तो वहाँ जब मैंने जाके देखा तो आई थॉट दैट ओके अब मुझे इस पे लेट नहीं करना चाहिए सो आई हैड दिस इन माई माइंड इन माई 4th ईयर बट आई टुक अ कॉन्क्रीट स्टेप ओनली आफ्टर आई वेंट टू बैंगलोर 1 महीने जॉब किया 1 महीने में क्विट कर दिया एंड आई थॉट दैट अब इसको फुल टाइम करते हैं आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी बिकॉज इफ यू आर इन अ डुअल माइंड राइट यू शुड गो अहेड विद योर प्लेसमेंट एंड देन you should realize ki whether it is exactly your cup of tea or not. Absolutely. So that's a strong grit that no, I want to join civil services. Because फिर मैंने एक चीज एक्सप्लोर कर ली थी because I did lot of internships in my college. So मैंने अपनी कोर फील्ड में भी की थी, Siemens में करी थी, एक श्लम वर्जन में करी थी. तो मुझे पता चल गया कि this is not something. So it was like a elimination technique. कि what is something which I don't want to do, and then I didn't want to have this. यार maybe I might have liked corporate. So वो मेरा elimination strategy से I came here and I thought that okay अब ये तो नहीं करना and UPSC is a thing जो मेरे दिमाग में था. And once I got into it, so I started liking the process and the learning. So elimination technique.
I think your elimination technique has helped you to sail through prelims Right, ma'am. 5 times. Yes, ma'am. पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद सारे अटेम्प्ट्स में आपने प्रीलिम्स किया, 3 बार मेंस लिखा, तीसरी बार मेंस के बाद Right, आपकी ma'am. सिलेक्शन भी हुई. सो ये एलिमिनेशन टेक्निक ये इनबिल्ट है या पीटी के लिए कैसी एलिमिनेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे थे? ये कभी भी प्रीलिम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, एक बार जो आपने सबक सीख लिया पहले अटेम्प्ट के बाद? राइट मैम. मैम तो मतलब इनफैक्ट मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट आई नेवर यूज एनी ट्रिक. वो हम नॉलेज पे ही रिलाई करते हैं. सो आई नेवर न्यू कि ऐसा कोई ट्रिक्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि आप एलिमिनेट कर दो, आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ दो. लॉट ऑफ ट्रिक्स यू नो. अब तो वो बहुत बढ़ गए हैं. सो बट या आफ्टर माई फर्स्ट टाइम गॉट टू नो कि ओके दिस इज समथिंग दैट वर्क्स इन यूपीएससी. एलिमिनेशन जो है वो बहुत काम आता है. सो या तो उसके बाद मैम फिर आई थिंक प्रीलिम्स एटलीस्ट मेरे लिए ये हो गया कि प्रीलिम की श्योरिटी होगी कि हाँ प्रीलिम निकल जाएगा. Neil, is it only the elimination techniques? Yeah, you also have to have a very strong basics and hold over current. नहीं मैम, बेसिक्स तो बहुत जरूरी है. एज सेड तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जैसे 1 नंबर से 1 या 1.5 नंबर से रुका हुआ था. सो आई रिलाइड ऑन माई नॉलेज बेस तो था ही. बट वो नॉलेज मे बी क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है. मेरे फ्रेंड ने एकदम स्टार्टिंग में कहा था एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन डिस्पाइट सिलेबस मेंशन किया, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में. सो वहाँ पे एक बार आपका फंडामेंटल्स क्लियर है, एक बार आपने सारे बेसिक बुक्स कर लिए, करंट अफेयर्स कर लिए, देन उसके बाद to get an edge or to get that brownie points, if I can call that. So वहाँ पे elimination helps you. So it's like a supplement to your knowledge. It's not just hard work, it's smart work. Smart work, yeah, rightly put. Okay. So prelims में आज के टाइम पे CSAT है ना, CSAT एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कई सारे एस्पिरेंट्स की, और अब तो इंजीनियर्स भी CSAT से घबराते हैं. सो आपका क्या मानना है, हाउ हैज़ बीन द डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ CSAT इन द प्रेजेंट टाइम्स एंड हाउ यू हैव बीन एबल टू क्लियर डिस्पाइट द राइजिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी? मैम सो येस, CSAT के लेवल तो काफ़ी बढ़ गए. इनफैक्ट प्रीवियस CSAT में मेरे लिए भी एक शॉकिंग था कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर थियरी और प्रोबेबिलिटी के सवाल है जो मैंने मतलब 12वीं की तैयारी में की थी, और फिर ऑलमोस्ट फिर उससे आउट ऑफ टच हो गए थे. सो फॉर अ पर्सन हु इज़ वेरी और इनफैक्ट हैज़ नो बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, तो उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी ज़रूर होती है. सो मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो क्योंकि आई हैड दिस बैकग्राउंड, सो मुझे थोड़ा सा एज था. सो आई विल say that was a privilege जो मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझे मिला CSAT में. बट जो करंट राइजिंग लेवल है CSAT के लिए, उसके लिए अब CSAT विल नीड अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन. सो इट इज़ नॉट लाइक 2017 में ऐसे होता था बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन. सो अब जैसे यूपीएससी ने हिंट भी दे दिया है कि आपको थोड़ा सा 10th के ऊपर जाना पड़ेगा. यू नीड टू हैव दैट काउंटिंग, नंबर थियरी, इन सब के करना. मतलब बट आई थिंक वो ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है. आई थिंक उसमें एक डेडिकेटेड 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन अगर कोई करे अलॉन्ग विथ योर GS प्रिपरेशन, सो इट कैन इजीली बी covered. So CSAT should not be taken lightly. It should not. मतलब if there is anything that मतलब हालांकि UPSC में nothing should be taken lightly, but या CSAT तो बिल्कुल नहीं, because 2017 के पहले CSAT के लिए बहुत ही एक कैजुअल रवैया था. इनफैक्ट मेरा भी. बट वंस आई गॉट टू नो 2019 में मुझे पता चला कि कुछ तो चेंज हो रहा है. देन आई माई सेल्फ डेडिकेटेड 1.5 week before my actual prelims to specific CSAT related questions. And is there any trick for comprehension part of CSAT? Ma'am, honestly, I never used any tricks in comprehension. Though there are, but I have. मुझे लगा कि यार comprehension में जो वो थोड़ा feel जो है comprehension की, अगर आप उस पे question करो तो ज़्यादा chances है सही होने के. So maths में तो बहुत सारे हैं, but comprehension में I don't think ma'am there's any trick. Okay. And Neil, you said that it was initially difficult for you being an engineer to write. Right. Then how did you manage, like you have written 3 mains, so how did you manage your writing part, especially in essay as well as your ethics section also? So one thing that I'll say कि essay में I always scored very good marks in essay. essay मेरा अच्छा था because मैंने कॉलेज में बहुत सारे electives लिए थे, और उसमें से जो इलेक्टिव 2-3 इलेक्टिव तो फिलोसफी के थे. एंड यूपीएससी के जो ऐसे जो आ रहे हैं वो फिलोसफी रिलेटेड आ रहे हैं. तो आई थिंक दैट वे वो थोड़ी सी राइटिंग या कॉलेज का जो एक बैकग्राउंड था इन थिंकिंग फिलोसफिकल एंगल से, तो वहाँ से मेरे को ऐसे काम आया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम GS जो हम पढ़ते हैं, ऐसे इज नथिंग बट अगर आप GS के नॉलेज को ढंग से उसको प्रोड्यूस कर पाओ, सो वो वहाँ पे ऐसे आपको यूजफुल आ जाता है. तो आई थिंक GS का एक्सटेंशन आई वुड से.
So I think it should be done in this manner, that if you have that kind of a thing in your mind, if you're determined that I want to do civil services and you are in engineering college, and if you get a chance to choose electives, राइट, so parallelly you should choose electives which जो are आपको नॉन इंजीनियरिंग चीज़ों के लिए भी तो एग्जैक्टली तो Yeah. हालांकि मेरा ऐसा प्लान नहीं था, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सजेशन. मतलब इट्स न्यू फॉर मी, बट ये अच्छा सजेशन अगर है तो. एंड इफ योर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफर, जो कि आई थिंक आज के टाइम पे हर इंजीनियरिंग मोस्टली न्यू college offer एजुकेशन करता है. पॉलिसी भी अब ये बैलेंस बनाने की बात कर रही है. राइट. तो आप फिर ऐसे इलेक्टिव्स ले लीजिए, तो फिर तो वो तो सोने पे सुहागा है. Okay, and then Anil, interview. That's again a very important phase of the whole preparation Right. and this whole process of selection. 3 बार इंटरव्यू दिया आपने, राइट मैम. तीनों बार कैसा अनुभव रहा आप? ऐसे में तो आपका कॉन्स्टेंटली अच्छे मार्क्स आते रहे, Right. क्या इंटरव्यू में भी कॉन्स्टेंटली अच्छे मार्क्स आए हैं? जी नहीं मैम, तो मेरे इंटरव्यू में पहले 2 अटेम्प्ट बहुत कम नंबर थे. मतलब उसको पनिशिंग नंबर कहा जाता है. सो और उसके रीजंस जो मैंने अपनी एनालिसिस से पता किया वो ये था कि जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरी खुद कुछ गलतियां थी, कि जैसे कहा जाता है कि इंटरव्यू में अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसका आंसर मत करिए. बट क्या होता है कि विद दिस टेंडेंसी ऑफ जो हम जीएस की तैयारी करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो हम लिख ही सकते हैं. जैसे जीएस का भी हम पेपर लिखते हैं तो हमें लगता है कुछ तो लिख दो, नहीं पता तो भी एग्जैक्टली. पर इंटरव्यू में दिस इज पनिश्ड. अगर आपको नहीं पता, इनफैक्ट फर्स्ट वो मेरे जब मॉक में देता तो ये चीज़ कहा जाती थी, बट वो उतना दिमाग में नहीं आती. हमें लगता था चलो मैं चीज़ आसपास तो बता दूं. आई वाज पनिश्ड फॉर दैट. सो आई वाज आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे नहीं पता था. आई रिमेंबर इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी पे कुछ पूछा था, एंड देन उसका एक काउंटर क्वेश्चन आया जो मैंने कुछ ब्लफ किया था. सो आई थिंक वो एक बार फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, तो आप फिर नहीं उभर पाते उससे. इन माई सेकेंड इंटरव्यू भी ऐसा ही कुछ था कि देयर वाज अ क्वेश्चन विच वाज asked and I was not very sure, so I could have simply denied that, but I went on to answer, and then वो थोड़ा सा back and forth हो गया, and then at least in my opinion मुझे लगता है कि this is the part where I was a little weak, but then इस वाले मेरे इंटरव्यू में I got decent number, I got 195, जो मुझे लगता है कि अच्छे नंबर है. It's a very good score. हाँ. Yeah. So और इस बार I was very very clear and upright in my mind कि I will not attempt any question जिसका मुझे at least 2 से 3 क्रॉस क्वेश्चनिंग लायक आंसर नहीं पता हो. सो इनफैक्ट पूछा भी गया था, उस दिन का लेटेस्ट न्यूज़ था, एंड आई डिडंट नो मच अबाउट द न्यूज़, सो आई डिनाइड दैट. एंड देन फिर आप ऐसे जब फैक्चुअल क्वेश्चन तो डिनाई करते हो, एंड देन यू कम इन दैट योर डोमेन वाले क्वेश्चन, वहाँ पे आप आंसर करते हो, सो दैट वर्क्स इन योर फेवर. So Neil, it's a learning for everyone that इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है. राइट. और वो आपको एक मतलब विकिपीडिया भी नहीं समझते हैं कि आपके Right. पास सब चीज़ का आंसर है ना. तो मैम क्या होता है ना, उस मोमेंट पे ये चीज़ क्लिक होनी बहुत डिफिकल्ट होती है. ये हाँ. चीज़ बहुत बार बोली जाती है, पर वो ये कि आप उस जोन में रहते हो तो आपको लगता है अगर मैं नहीं दिया तो हो सकता है मतलब नेगेटिव हमें इंप्रेशन अपना पड़ जाए. ईगो नहीं बना लेना चाहिए कि ईगो Right. पॉलिशिंग दैट नो दिस Right. आई हैव टू I have आंसर. to answer. The point is, this personality test is about your intellectual integrity. Right. If you do Right. not know, say no. They Right. also understand that you are Right. not a Wikipedia. Wikipedia. So I think that's a big learning from your Exactly. experience कि 2 बार आपने जबरदस्ती beating around the bush and हाँ. ego polishing करते हुए हाँ. हर क्वेश्चन का आंसर किया, नंबर Right. नहीं आया. इस Right. बार आपने मना भी किया. मना किया. तो मैंने भी इनफैक्ट आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मना किया, और जो कि ऐसा था कि वो आने चाहिए थे क्योंकि वो उस दिन का न्यूज़ था. बट देन मुझे लगा कि हाँ नहीं आता तो नहीं बता. एंड दे आर लाइक वेरी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स, ठीक है, ही इज नॉट नोइंग दैट. So जहाँ पे आपके पहले 2 attempts में where you were trying to give any kind of answer to questions, Right. so was the board still cordial to you? बोर्ड इज़ वेरी कॉर्डियल. मतलब बोर्ड से तो आपको मतलब ऐसा कभी नहीं लगेगा कि बोर्ड ने कुछ ऐसा. हाँ, एक मेंबर वो मेरे ख्याल से होता है. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट या एक आध मेंबर ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा लग सकते हैं कि मे बी लिटिल थोड़ा सा एंग्री, if I can use that word. But That's this a way time, of checking your stress also, Right. like how do you Right. answer How in the do you answer, stressful situations. Yeah. exactly. But this मेरा इस attempt में, so the board was very cordial. They were listening to me. And और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हुआ पिछले 2 साल का, that also helped me somewhere to gain that confidence and gain that professionalism. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि maybe in my first 2 attempts थोड़ा सा वो जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं होते हो, एटलीस्ट फॉर मी, तो मे बी वो एक मेच्योरिटी नहीं आ पाती. बट देन इवेंचुअली विद दिस अटेम्प्ट, सिंस आई वाज इन माय कंपनी, आई वाज स्पीकिंग टू लॉट ऑफ
यू नो माय बॉसेस एंड ऑल जो काफ़ी सालों से थे, तो वहाँ से एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता था. आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी इन दिस अटेम्प्ट. And Neil, this time you have also joined our interview guidance program Yes, as ma'am. well. So how did the program help you? So that program really helped me. I think I gave 2 mocks. One was the faculty mock and one was One of the the formal mock. formal mock. So yeah, so the inputs that, in fact, I'll say कि वहाँ पे भी मुझे input यही मिला था. That was like 1 month before my actual interview कि deny if you don't know. So here also yeah. you were trying to मैम वो answer to naturally every हो जाता है, question. because sometimes you don't because वो question ऐसा नहीं होता कि बहुत ही factual है. There are, you know, half of it, you don't know like the other half of it. So and you are not very sure कि उस पे counter आएगा कि नहीं. Sometimes you might answer one part and question counter नहीं आए तो you are safe. So it's very difficult to even assess कि यार इसको attempt करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, because you don't know कि counter कहाँ से आ जाए. So that way I was very conscious this time कि यार वो नहीं करना है. And yeah, luckily I was not taken to that territory इस बार अपने actual interview में. So this mock interview has definitely helped me. And Frank sir का board था. I just remember Frank sir because उनको हम देखते थे. So उनके जो questions थे और उनका जो वो था, so yeah, it helped me a lot. And confidence building के लिए जो एक faculty mock था, वहाँ पे I got good reviews. So even that was a confidence booster. Yes, because see, ultimately it's the game of confidence. Right. Neither over nor under. Right. Yeah. So Neil, 6 attempts and finally now you are in the list. Yes, ma'am. So your journey is a very long journey, and this time many students with 5th attempt, 6th attempt, yeah, with lots of ups and downs, they have been selected. Every year it happens, but this time I have come across many students. Right. And one thing is like, okay, all that ends well is well, but the journey behind all this, it's also very, very difficult to live that journey, and you have lived this journey, sometimes up, sometimes down. So how did you manage this? There's a lot of stress, lot of say expectations. So initial जो मेरे जितने भी failures होते थे, so उस time पे I had a very good support from my parents. So this is like a no-brainer for me. तो मेरे को my parents were always like ठीक है. So they never pushed me कि ये करना है. They were always like ठीक है, नहीं करना है तो you can take up a job. But then every time वो जो एक क्या कहते हैं, वो एक कॉन्वर्सेशन जो होती थी मेरे पापा के साथ, मम्मी के साथ, बहन के साथ, माई सिस्टर, यंगर सिस्टर, सो दैट हेल्प मी. आई हैड गुड 1-2 फ्रेंड्स थे जो हमेशा मोटिवेट करते थे. एंड जो आपने एक्सपेक्टेशन की बात की मैम, वो एक्सपेक्टेशन का मतलब मैंने इस बार ये किया था कि मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में किसी को बताया नहीं था कि आई वॉज गिविंग दिस अटेम्प्ट. मैंने अपने पेरेंट्स को भी एकदम लास्ट क्लास में बताया. माई सिस्टर नेवर न्यू, इट वाज सरप्राइज फॉर हर. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशन जो हमारे साथ, मुझे ऐसा लगा कि मे बी वो एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं हम पे वो इम्प्लिसिट प्रेशर आ जाता है. सो आई हिड दिस फ्रॉम एवरीवन अंटिल फाइनल रिजल्ट नहीं आया. सो इट वाज सरप्राइज फॉर मेनी. सो मुझे लगता है वो एक मेरे लिए हेल्प किया कि मैं आई वॉज वेरी केयरफ्री इन माई फाइनल अटेम्प्ट. मुझे लगा नहीं भी हुआ तो ठीक है, आई एम डूइंग अ जॉब एंड नो वन न्यूज़, तो वो स्टोरी बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. तो उसके वजह से आई वॉज एबल टू परफॉर्म बेटर देन माई प्रीवियस अटेम्प्ट. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक चीज़ मतलब वो बचपन में कहा जाता है ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, बट यूपीएससी की प्रिपरेशन में वो एक नेचुरल आ जाता है. इस बार मैंने वही कहता है कि ज़्यादा किसी को बताया नहीं. सी अब जब बहुत ज़्यादा आप बताते हो तो आपका क्या होता है कि ध्यान भी भटक जाता है. So you were, I think in this attempt you were completely focused. Right, ma'am. You were completely focused. You were not expecting anybody asking you questions. अब क्या हुआ इस स्टेज में, क्या हुआ है ना? So that is the thing. So Neil, as prelims are approaching and there are so many people who are listening to you. And many of them, like you said in the beginning, जब हमारी आपस में बात हो रही थी, आपने बताया कि आप भी मोटिवेट हुए थे किसी टॉपर की बात सुन के 2013 में, गौरव अग्रवाल, फर्स्ट रैंक, और आज आप खुद टॉपर स्टॉक दे रहे हो. तो आपका क्या संदेश होगा उन लोगों के लिए जो आपकी तरह मोटिवेट हों और इस सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए जो है अपना पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी करें? मेरा मोटिवेशन या मेरा जो मैसेज होगा वो ये होगा कि दिस प्रिपरेशन इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज. सो इफ़ यू आर कमिंग इनटू दिस प्रिपरेशन, मतलब ठीक है एक सर्विस में आना एक आपका गोल होता है, बट
उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू जो यहाँ पर जो आप चीज़ें पढ़ोगे, मतलब मेरे लिए हमेशा से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मैंने कभी उतने डेप्थ में सोशल साइंसेज नहीं पढ़े थे. सो गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ऑल दो सब्जेक्ट और किसी के डेप्थ में जाना एंड एक अवेयरनेस रहना, सो दैट वाज समथिंग विच हेल्प्ड मी. वो आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन करवाता है 1-1.5 साल की पढ़ाई करने के लिए. दैट इज़ वन. तो मुझे लगता है कि गोल से ज़्यादा जर्नी पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए. ठीक है, सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज़ द फाइनल थिंग. और जो दूसरी चीज़ जो मैं एक एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा वो ये कि और ख़ास करके उनके लिए मैम, बिकॉज आई हैव, मेरा ये 6th अटेम्प्ट था. सो जब आपका 3 से 4 अटेम्प्ट हो जाता है, सो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इफ़ यू कैन हैव अ प्लान बी, दो जनरली एक यूपीएससी के सर्कल में एक बहुत ही वैसी बात मानी जाती है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से एक प्लान बी होना चाहिए. बिकॉज कभी कभार हम सिर्फ जोश में या एक इंस्टेंटेनियस मोटिवेशन से हमारा काम नहीं चलेगा. ये एक लंबा जर्नी, लंबा प्रोसेस है. तो अगर आप इसमें कुछ ऐसा कर लो कि यार आपके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे, एक फॉल बैक ऑप्शन रहे, और फिर आपका जो फोकस है वो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो ज़्यादा एनहांस तरीके से हो पाएगा. सो हैविंग अ प्लान बी वर्क्स. अगर आपका 3 से 4 अटेम्प्ट हो चुका है, और फर्स्ट अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि इस प्रोसेस को एंजॉय करो, बिकॉज लर्निंग्स और जो चीज़ें पढ़ते हो, दिस इज़ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी. आज भी मैं जब इकोनॉमिक्स का कुछ ऐसा आर्टिकल पढ़ता हूँ या कुछ ऐसा IR में कुछ देखता हूँ, तो इट स्टिल फैसिनेट्स मी इवन आफ्टर 6 years. सो आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी होता है आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन. बाकी फिर ठीक है, बाकी इसमें आंसर राइटिंग है, प्रीलिम्स. आई थिंक एवरीवन नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, वो कैसे की जाती है. टेस्ट सीरीज लगाना मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट था कि जितने टेस्ट लगा सको उतने अच्छे होते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू प्रैक्टिस. एग्जाम इन्वायरमेंट में खास करके, तो घर पे ऐसा माहौल बना के या कोई ज्वाइन करके, तो वहाँ पर अगर आप करो तो वो बेटर है. सो वो एक जो एक प्रोसेस जिससे हर एस्पिरेंट गुजरता है, उससे तो गुजरना है. तो शॉर्टकट नहीं है, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस एग्जाम. दैट्स माय अल्टीमेट. So Neil, you have rightly said that there is no shortcut to success, and you have also rightly said that कि अगर आप इस प्रिपरेशन को enjoy करते हो, है ना, if you enjoy this whole journey, then होना ना होना is a very different thing, Right. but you become a knowledge seeker throughout your life, है ना. आप पूरी लाइफ जो है आपका एक रूटीन बदल जाती है. आपको जो है you become a knowledge seeker, which anyways help you to enhance yourself in any of the field that you are pursuing. Absolutely. And Neil has also rightly said that plan A, plan B, and it also depends on individual. If you think plan B gives you motivation or plan gives you a psychological boost, then there is no harm in continuing with your plan B also after 3rd or 4th attempt. Right. So that's a kind of a breather. If you are not getting selected in the first 2-3 attempts, take a break, think, start afresh. Right. Go ahead with your plan B if you have any, and then start from the scratch. Right. If you have done the hard work, it will not go waste. Right. And it will never go waste. You might be in the list, you might not be in the list, but whole preparation will never go waste. Right. So thank you, Neil, for inspiring many of us, and congratulations for your success again. Thank you, ma'am. Thank you.